everyone. I hope you all are fit and fine. Let us start, beta. We are doing poverty as a challenge, and today we are going to discuss what poverty line. Okay. So poverty line क्या है देखिए. Poverty line a benchmark which define the poverty. Poverty line क्या है? A benchmark which define the poverty. A common method used to measure poverty is based on the income or consumption level. In India, poverty line को measure करने के लिए we use two methods: income level and consumption. Okay, income level and consumption. So a person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to satisfy basic need. Okay, मतलब एक लाइन है. लाइन ऐसे नहीं कि जैसे आप जो गेम कबड्डी का गेम खेलते हैं उसमें एक लाइन है, इस लाइन को टच कर दिया तो यू आर विनर, और टच नहीं किया तो आप मतलब हार गए. यहाँ पॉवर्टी लाइन दिखाई नहीं देगी बेटा. पॉवर्टी लाइन मतलब एक ऐसा लेवल है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है. दोज हु आर बिलो दिस लेवल they are considered below the poverty line, and those who are above the line, it doesn't mean कि आप rich हो गए. No, it means you are not considered poor, you are not below the poverty line. Clear? Second thing, poverty line may vary with time and place. हर एक country की different है poverty line. ऐसा नहीं कि India and USA, like this is USA and this is India. तो ऐसा नहीं कि एक ही लाइन एक ही इनकम लेवल होगा और हम दोनों कंट्री में हम वी कैन से कि दीज पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन. हर एक कंट्री की अपनी डिफरेंट इकोनॉमी है, अपना जीडीपी है, सर्कमस्टेंसेस है, रिसोर्सेज है. ओके, लाइक इन यूएसए दिस इज नॉट डोनाल्ड ट्रम्प. कभी आप सोचे मैम ने डोनाल्ड ट्रम्प बना दिया. आई वॉन्ट टू से दिस थिंग कि इन यूएसए इफ यू डोंट हैव कार देन यू आर कंसिडर पुअर. वो वहाँ की सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग है. बट यू नो इन इंडिया हैविंग ए कार मीन्स it means it is a luxury item. और ऐसा भी नहीं है कि those who don't have car it means वो below poverty line है, they are well off. Clear? I want to say this thing. मतलब हर एक कंट्री की अपनी circumstances, इकोनॉमी, जीडीपी के अकॉर्डिंग जो है हर एक कंट्री की अपनी अलग से poverty line. Got this? So poverty line may vary with time and places, and in India for estimation of the poverty line, two methods are used: income method we can say, and the consumption method. बता दिया बस. Yes बेटा. As for estimation of the poverty line, there are two criteria: income and consumption criteria. So let us discuss about this consumption criteria. So watch carefully. A minimum level of food requirement. A minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement, etc. are determined for subsistence. कंजप्शन लेवल की हम बात कर रहे हैं. कैसे इसको वी कैन कैलकुलेट दीज फिजिकल क्वांटिटी किसकी बेटा? इन गुड्स की, जो डिफरेंट सीरियल्स हैं या फिर क्लोथिंग, फ्यूल, एजुकेशन, ये सब है. दीज फिजिकल क्वांटिटी आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज. क्लियर?
this formula for food requirement while estimating poverty line is based on desired calorie requirement. इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करके कैलोरी रिक्वायरमेंट, मतलब पर्सन को कितनी कैलोरी जो है पर डे रिक्वायर्ड है उसके। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, नाउ लिसन केयरफुली, अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया फॉर रूरल एरिया there is need of 2400 calorie. Requirement of the calorie is 2400 in rural area, and in urban area there is need of 2100 calorie. Now you will ask, beta, why man? In urban area there is requirement of less calorie, and in rural area there is requirement of more calorie. Why this? You know very well, beta. In rural area, in villages, गाँव में आप देखेंगे मोस्टली पीपल आर एंगेज इन फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, दे आर एंगेज इन फिजिकल वर्क, मोस्टली मेंटल के कंपैरिजन में दे आर डूइंग फिजिकल वर्क। इट मीन्स वही आप अगर फिजिकल वर्क आप ज़्यादा करते हैं तो इट मीन्स आपको रिक्वायरमेंट एनर्जी, यू नीड मोर एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें, कैलोरी जो हम फूड जो हम कंज्यूम करेंगे वहाँ से। सो इन रूरल एरिया हाउ मच कैलोरी इज रिक्वायर्ड, 2400 कैलोरी, एंड इन अर्बन एरिया हाउ मच कैलोरी रिक्वायरमेंट इज देयर, 2100 कैलोरी, बिकॉज दीज पीपल आर एंगेज इन लेस फिजिकल वर्क। क्लियर व्हाट आई सेड, वी हैव डन consumption criteria. So according to consumption criteria, a person who is living in rural area, उसको कितनी requirement है कैलोरी की, 2400 कैलोरी। If he or she not getting 2400 कैलोरी per day की बात कर रही हूँ, if he or she is not getting 2400 कैलोरी per day, so according to this consumption criteria, these people will be considered below the poverty line. Clear? These person will be considered below the poverty line if they are not getting 2400 calorie per day. Got this? And in urban area, city की अगर हम बात करें, if person are not getting 2100 calorie per day, पर डे कैसे, जो भी वो कंज्यूम करते हैं, फूड, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, वट एवर आइटम दे कंज्यूम, 2100 कैलोरी, इफ दे आर नॉट गेटिंग 2100 कैलोरी पर डे, देन पर्सन विल बी कंसिडर बिलो द पॉवर्टी लाइन। दिस इज द कंजम्पशन क्राइटेरिया। गॉट दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज कंजम्पशन। So 2100 calorie for the urban. Okay. Now we will discuss about income level, income criteria. अब income criteria क्या है देखो, the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for rural area and rupees 1000 for urban area, and these are the data of the census 2011-12। ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, इनकम के बेस पर हाउ वी कैन क्लासिफाई कि दीज पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन और अबव द पॉवर्टी लाइन। सो अ पर्सन हुज इनकम इज रुपीज 816 पर मंथ, मंथ की बात हम कर रहे हैं, रुपीज 816 पर मंथ फॉर रूरल एरिया एंड रुपीज 1000 फॉर अर्बन एरिया, it is fixed. Those who are earning less than 816 rupees in rural area, they will be considered poor, and those who are earning less than 1000 rupees per month in urban area, they will be considered poor. Okay, and listen, if there are 5 members, how many members? If there are 5 members in the family, then in rural area, if a person income is 4080 rupees or less, 4080 से less है,
then person will be considered poor. वो फैमिली poor फैमिली में काउंट की जाएगी. And in urban area 5,000 rupees. If income is 5,000 or less than 5,000 will be considered below the poverty line. What is? Listen beta, I repeat. We have done two criteria. First is consumption criteria. According to consumption level, if a person in rural area who is living in village and are not able to get 2400 calorie per day, that person will be considered poor. Okay, and if a person is living in urban area, if he is not able to get 2100 calorie per day, then that person will be considered poor. Okay, and income criteria में हमने क्या डिस्कस किया? सिंगल पर्सन की बात करें, if a person monthly income is 816 rupees or less than it, that person will be considered poor. And in urban area की अगर हम बात करें, if a person income is 1000 or less than it will be considered poor. नाउ बेटा आप ये सोच रहे होंगे मैम आप सब पॉवर्टी लाइन कैसे एस्टिमेट होता है ये बता रहे हैं, बट हु एस्टिमेट, हु कैलकुलेट, हु डिसाइड दिस पॉवर्टी लाइन? सो लिसन केयरफुली. पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड हाउ? पीरियोडिकली. जनरली इट इज 5 years. Poverty line is estimated periodically, generally, normally 5 years by conducting survey. कैसे होता है? बाय कंडक्टिंग सर्वे. एंड ये सर्वे कौन कंडक्ट करवाता है? NSSO. हु कंडक्ट दिस सर्वे? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? तो कौन कंडक्ट करवाता है बेटा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, पीरियोडिकली 5 years में. और एक फंक्शन और आपको बताती हूँ एनएसएस का. आपको पता है सेंसस है ना? 2011 सेंसस का मतलब है पॉपुलेशन की काउंटिंग करना. ये भी कौन कंडक्ट करवाता है? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. वो 10 years में होता है. वाई 10 years? 10 years इसलिए बेटा यू नो वेरी वेल, इंडिया इज लार्ज कंट्री है जहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरी है एंड आपकी 28 स्टेट हैं. लाइक जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बन गई है. तो जम्मू कश्मीर अब अगर स्टेट नहीं है तो इट मीन्स 28 स्टेट. यूनियन टेरिटरी आपकी कितनी है? 28, बिकॉज दमन एंड दीव एंड सिलवासा जो है, दादर नगर हवेली, उनको मर्ज कर दिया गया है. सो यूनियन टेरिटरी आर 8. ओके, सो यहाँ पर हम बात करें तो ये सभी 10 years में एनएसएसओ कंडक्ट करवाता है. लास्ट जो है 2011-12 में सेंसस हुआ और उसके अकॉर्डिंग आवर इंडियन पॉपुलेशन वाज अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़. ओके, 130 करोड़. और अगर हम प्रेजेंट की बात करें कि मैम 2011-12 के अकॉर्डिंग 130 करोड़ है, इट मीन्स 10 years में होगा तो अब होना चाहिए ना 2021 में जो है सेंसस होगा, जिससे रिलेटेड ड्यूटी अभी लगने भी लगी हैं कुछ टीचर्स की, बट ड्यू टू कोविड-19 जो है इसमें थोड़ा सा डिले है. अदरवाइज ड्यूटीज़ आ जाती है इस टाइम तक. तो 10 years में कंडक्ट होता है, बिकॉज इतने बड़े स्टेट, इतनी बड़ी कंट्री के अंदर ये ऐसा नहीं, इतना ईजी नहीं है बेटा. इवन रोड साइडेड पीपल आर काउंटेड, हर एक को काउंट किया जाता है. इतना ईजी नहीं है कि हर 2 साल के अंदर, बिकॉज इट नीड मोर ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज मनी ऑल्सो. ओके, सो 10 years में जो है सेंसस होता है. सो वी हैव डन दिस बेटा टू कंडक्ट सर्वे रिलेटेड टू पॉवर्टी लाइन NSSO, and full form of NSSO is National Sample Survey Organization. Clear? Today we have done beta 2 criteria to measure the poverty line, जिसमें हमने कंजप्शन लेवल की बात की एंड इनकम लेवल की बात की. कंजप्शन लेवल में कैलोरी की बात की, 2400 कैलोरी इन रूरल एरिया, 2100 कैलोरी इन अर्बन एरिया. इनकम लेवल में हमने इनकम की बात की, जिसमें अगर पर्सन सिंगल है देन इनकम 816 रुपीज़ एंड
if he is living in rural area and if person is living in urban area, then income 1000 or less than have, then person will be considered poor. Okay, thank you.